Good morning, students. This is my third video of Life Process Chapter 6, Standard 10th. In this video, already I have uploaded two videos in which I have explained about nutrition in plants and nutrition in human being. This video, I will explain about the second life process, respiration. As we know, there are four life process: nutrition, respiration, transportation, and excretion. In the first video, as I said, I have explained nutrition in plants and nutrition in animal, and then today I'm going to explain the second life process, respiration, and transportation excretion I will explain later. So first thing is respiration, which I'm going to explain. This topic I'm going to explain about what is respiration, few activities given in the textbook, and then what are different types of respiration, and what are how does it takes place in plants and human being. So first thing is respiration. Respiration, if we define respiration, it is the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the breakdown of food sources for cellular needs. See, there is difference between respiration and breathing. Breathing is the process of taking oxygen and exhaling carbon dioxide from the body. But respiration occurs in three steps. First thing, intake of oxygen. We take oxygen from outside the body, and then second step is use of this oxygen to break down the food sources, those we have taken. I have explained during the nutrition process, the food which is absorbed by the blood vessels. This food has to be broken down into simpler substance, and this is done by using oxygen. So first step in respiration is intake of oxygen. Second is use of this oxygen to break down the food into simpler substance, and then third one, breathing out of this, breathing out the carbon dioxide. Once again, I repeat the definition: the process of acquiring oxygen from outside the surrounding, from outside the body, and to use this oxygen in the breakdown of food sources is breakdown of food sources for cellular needs is known as respiration. Now there are few activities given in your textbook, activity 6.4 and activity 6.5. I will explain first activity 6.4. In this activity, we take two test tubes, simple this two test tube which contains lime water. In one test tube, simply normal air is passed through a pipe, and in the second test tube, exhaled air is passed through a tube, thinner tube. What we observe that in the first test tube, lime water turns milky in a longer time than in the second test tube, because in the exhaled air, carbon dioxide, percentage of carbon dioxide is more. So, and we know that carbon dioxide turns lime water milky. So in the second test tube, the lime water turns milky in a shorter time. In another activities, uh, we have taken in activity 6.5, there are two test tube, broader test tube taken. In one test tube there is sugar solution. We can take fruit juice also. We have to take the solution which contains basically glucose, and some yeast are added in this test tube. This test tube contains sugar solution and some yeast. You must have seen yeast. It is used in making bhature batter, or in it is also used in baking bread, etc. Actually, it gives the fluffiness in the food. And another test tube, we have taken lime water. These two test tubes are connected with a bent tube. This one is the bent tube,
Now, uh, it reacts with the glucose and it produces carbon dioxide. This carbon dioxide pass through this bend tube and it comes to lime water solution. We know carbon dioxide turns lime water into milky. So after a certain time, this lime water turns milky. It shows that in this reaction carbon dioxide gas is released. Now, this is the same thing which I have already explained. Respiration in 3 steps. First is intake of oxygen. Second, use of oxygen to break down glucose completely into water, carbon dioxide and energy. And third is exhale of carbon dioxide. First and third step is actually breathing. Respiration is different because it breaks down the glucose. There are two types of aerobic there are two types of respiration. One is aerobic respiration, another is anaerobic respiration. Aerobic respiration is the respiration which occurs in the presence of oxygen. Anaerobic respiration is the respiration which occurs in lack of oxygen or in absence of oxygen. Anaerobic respiration occurs either इन लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स अगर ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, उस समय जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ऑक्सीजन के सफिशिएंट प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे जो शुगर ईस्ट का रेस्पिरेशन था दिस वाज एनारोबिक रेस्पिरेशन. Now, I will explain in detail how this respiration takes place and actually what happens in the cell of our body during the process of respiration. ये फूड जो है हमने बोला कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है. तो एक्चुअली क्या ब्रेक डाउन होता है और किस में ब्रेक डाउन होता है? एज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि जो हम फूड फाइनली डाइजेस्ट होता था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से और वहाँ से ब्लड वेसल्स उस फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुँचाता था. तो आर फूड विच इज़ नाउ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is in each and every cell of the body. Now, when the oxygen reaches to the glucose present in the cell, this glucose breaks down in the pyruvate. Glucose is a complex molecule. It is actually 6 carbon molecule, and this 6 carbon molecule, that is food glucose formula is C6H12O6. Everyone knows this. So this glucose is getting converted into pyruvate in cytoplasm. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यू हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट सेल एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस जगह पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में बाय यूजिंग ऑक्सीजन. पायरुवेट इज़ अ सिंपलर सब्सटेंस. इट इज़ एक्चुअली C3H4O3. इसका फॉर्मूला C3H4O3 है. और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद नाउ देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशन. वन इज़ आइदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन. व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया इन केस ऑफ ईस्ट. In absence of oxygen, this 3 carbon molecule, that is pyruvate, gets converted into ethanol, carbon dioxide and energy. Ethanol is actually a type of alcohol. This is C2H5OH. आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री के एक चैप्टर में. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज CO2 and energy which is required to do our daily activities. So in absence of oxygen, pyruvate gets converted into ethanol, carbon dioxide and energy. This respiration takes place in yeast. Then in lack of oxygen, अगर ऑक्सीजन की कमी है और दैट टाइम अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन एज आई सेड इट अकर्स इन ईच एंड एवरी सेल. तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज वी आर रनिंग और वी आर डूइंग सम एक्सरसाइज.
we are going to gym and we are doing hard work, heavy workout. So that time we need more energy, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा when you run or when you do heavy exercise, you breathe, your breathing is very fast. तो क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. एंड टू गेट मोर ऑक्सीजन वी ब्रीथ फास्टर. तो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी है, बॉडी को ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन उतना है नहीं, तो दैट टाइम हमारी बॉडी में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3. और ये सब फार्मूला भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. यू मस्ट हैव फील, जब आप बहुत दौड़ते हो, सपोज स्कूल के स्पोर्ट्स डे के लिए आपने बहुत प्रैक्टिस की, घर आके आप बोलते हो कि मेरे ना लेग्स में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड. जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से पेन होता है. एंड देन व्हाट वी डू, अगर कहीं पे पेन हो रहा है सपोज हमारे लेग में, तो हम उसे मसाज करते हैं. मसाज करने से क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है. ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है. और जब ऑक्सीजन पहुँच जाता है लैक्टिक एसिड में, तो फिर वो वापस से इसके साथ रिएक्ट करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारी बॉडी में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं टू गेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन. वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, इसलिए हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है. और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में क्या बनता है, हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, इट कॉजेज पेन इन द मसल्स. और उस मसल्स के पेन को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम मसाज करते हैं. मसाज करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है. ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है. और फिर ये लैक्टिक एसिड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर हमें बना देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में है, सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में. मोस्टली जो हमारी बॉडी में होता है ये हमारा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में, कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में. और ये पायरूवेट कन्वर्ट होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. कहाँ पे ये होता है, ये होता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया आपने यू मस्ट हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास 8 और 9 में. माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. तो एक्चुअली देखो ये दोनों केस जो है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों एनारोबिक वाला है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का केस है. और ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड आता है, एंड एनर्जी आता है. एनर्जी को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ ATP. ATP इज़ एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है. तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन आइदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, द एनर्जी release is very less, the amount of energy is very less, it is only 2 ATP or 2 ATP in both cases. But in case of aerobic respiration, where the end products are carbon dioxide and water, the energy is 38 ATP. 38 ATP when one molecule of glucose is used. वन मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट में एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो टोटल जो करेंसी है एनर्जी की वो कितना रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे, 38 ATP. 38 ATP रिलीज़ होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है. किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में. बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन only 2 ATP is released either in absence of oxygen or in lack of oxygen. I hope you have understood this topic. Once again I explain this. ATP is adenosine triphosphate.
इसका फॉर्मूला होता है C10H16H5O13P3। वंस अगेन आई विल से यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। यहाँ पे P3 है, दिस इज़ फॉर ट्राईफॉस्फेट। ATP is the energy currency for cellular process like contraction of muscles, protein synthesis etc. देखो एनर्जी की ज़रूरत, हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स का, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, अभी मैंने डाइजेशन में बताया था कि फूड डाइजेस्ट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग हैं। तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत, जो भी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ चल रही है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है हमें, रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वन बाय वन आई विल डिस्कस। प्लांट्स बहुत डिटेल में नहीं है, बट एनिमल्स में हम ह्यूमन बीइंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। एनिमल्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के मेनली 3 पार्ट्स हैं, लिव्स है, स्टेम्स एंड रूट्स हैं। लिव्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उसमें जो ये होते हैं गार्ड सेल होते हैं, और लिव्स में बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है उसके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है, आइदर CO2 और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के समय प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और आफ्टर रेस्पिरेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है प्लांट्स में रेस्पिरेशन के समय वो ये है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। दिस इज़ एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। डे टाइम में ऑल ऑफ यू नो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है। तो रेस्पिरेशन के समय जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखोगे जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 प्लस वाटर जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों जस्ट वाइस वर्सा हैं प्लांट के केस में। तो प्लांट्स डे टाइम में जो रेस्पिरेशन के समय CO2 रिलीज़ किया वो पूरा का पूरा यूज़ कर लेता है अपना फूड बनाने में और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। सो मेनली जो निकल रहा है प्लांट से वो उस टाइम पे हमारा ऑक्सीजन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। बट एट नाइट टाइम when there is no photosynthesis process is going on, तो रेस्पिरेशन के समय हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 होता है। एंड दैट्स वाई पीपल सजेस्ट कि रात के समय हमें प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर हम ज़्यादा प्लांट्स है वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। नाउ there are different types of animals, terrestrial animal, aquatic animal. terrestrial animal तो उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और जिसके थ्रू वो करेंगे। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी है, पूरा सेल है, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है और इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सकता है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, diffusion is not sufficient because each and every cell is not in contact with the environment. So for that a proper system is there, different organs are there for the process of respiration. Respiration in I was explaining respiration in terrestrial animal and aquatic animal. The animals in multicellular organism, the multicellular organism like animals, they have different organ for taking of oxygen from the environment and then for getting rid of the carbon dioxide which is produced during the process of respiration.
They can breathe in oxygen from the atmosphere, but those animals who live in water, those aquatic animals, they have to use the oxygen which is dissolved in water. And because the amount of dissolved oxygen is very low in compared to the atmosphere, so the aquatic animal breathe very fast to take the oxygen. For example, fish क्या करते हैं, they take dissolved oxygen in water through their mouths, and then they throw it out through the gills. At the gills, blood vessels are there. These blood vessels take the oxygen dissolved in water. तो फिशेस माउथ से पानी लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन डिजॉल्व है, और एट द surface of the gills these oxygens are absorbed by the blood vessels, and then carbon dioxide is released there, and then water, they throw the water through the gills. Terrestrial animals, as I said, they have different organs for taking and exhaling the gases, taking in the oxygen and exhaling the carbon dioxide. So this thing can be understood with the help of respiration in human. Actually human में respiration कैसे होता है, what are the different organs. See, you can look this. As we know, we take oxygen through our nose, nostril से air which contains oxygen passes through nasal passes में हमारे बहुत सारे tiny hairs and mucus होते हैं. This filters the air. जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं एयर में पॉल्यूटेंट के फॉर्म में, दिस आर फिल्टर्ड इन द नेजल पैसेज. कैसे? विद द हेल्प ऑफ टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस. देन फ्रॉम द नेजल पैसेज द एयर गोज टू फेरिंग्स से लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. वी नो फेरिंग्स ये हमारा कॉमन पार्ट है फॉर एयर एंड फूड एंड एयर दोनों फेरिंग्स में आते हैं. फेरिंग्स के बाद फूड चला जाता है एसोफेगस पाइप में, और जो एयर है दैट एंटर्स इनटू लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. आफ्टर लैरिंग्स द एयर कम्स टू ट्रैकिया से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे थ्रोट के अंदर होता है, और दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. कार्टिलेज क्या होता है? एक्चुअली बहुत सॉफ्ट बोन्स होते हैं यहाँ पे, ये सारे कार्टिलेज हैं. तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बहुत सारे होते हैं टू इंश्योर दैट टू अवॉइड द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज. जो ये एयर पैसेज है जिसके थ्रू आता है उसको अवॉइड करने के लिए. एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कहें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा ये पूरा हो गया, नॉस्ट्रिल, नोजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एट्सेट्रा. एंड दूसरा जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज दिस लंग्स में. यहाँ से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद ये दो हमारे मेन ब्रांच आते हैं. दिस इज नोन एज ब्रोंकाई. How many bronchi are there? 2 bronchi are there, one each for lungs, each lungs. ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं न्यूमरस ब्रोंक्यूल्स में. बहुत सारे ब्रांचेस में, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में वो डिवाइड हो जाते हैं. और ये जो ट्यूब्स हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, दे फाइनली एंड अप विथ बैलून लाइक स्ट्रक्चर. हर एक ट्यूब के लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं. ये जो एल्वियोली है, इसके वॉल पे, इसका जो सरफेस है, इससे न्यूमरस ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं. तो जब एयर इन सब के थ्रू होता हुआ ब्रोंकाई में आता है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में आता है, एंड फाइनली ये पहुंचता है एल्वियोली में. एल्वियोली के सरफेस पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं. तो एट दिस सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं अंदर, व्हेन वी ब्रीथ इन, दिस डायफ्राम फ्लैटेंस, एंड लंग्स जो है हमारा कहाँ पे होता है? वो हमारे रिब केज में होता है. रिब से
कवर्ड होता है, ताकि प्रोटेक्टेड होता है एक तरह से हम कह सकते हैं। ये जो लंग्स है ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? रिब केज से। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये रिब केज जो है वो लिफ्ट अप होता है और ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। जब ये रिब केज लिफ्ट अप होता है तो ये जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं और एयर पूरे लंग्स में फिल हो जाता है। आई रिपीट इट अगेन, व्हेन वी ब्रीद इन the rib cage lift up, the diaphragm flattens and the lungs expands so that the air fills the lungs. एयर जब यहाँ पे आ गया लंग्स में, ये पहुँचता है एल्वियोलर सैक पे या एल्वियोली पे। एल्वियोली से कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर। वो हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं एल्वियोलर सेक पे। एल्वियोलर सेक से वो ऑक्सीजन लेता है ब्लड वेसल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है यहाँ पे। ब्लड वेसल में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ से एल्वियोली से लेता है और ब्लड में मिक्स करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के हर एक सेल से आता है ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वियोली में, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट। वो हाईली डिजॉल्वेबल, हाईली सॉल्युबल है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में आता है एल्वियोली तक और फिर अगेन सेम पाथ से वो वापस हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। एल्वियोली देन एल्वियोलर, एल्वियोली देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड देन नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस होल respiration cycle, when the air is taken in and when with the oxygen and the carbon dioxide is let out, this lungs always contain a residual volume of air, so that there should be sufficient time for the oxygen to be absorbed by the hemoglobin and for the carbon dioxide to be released from the blood vessel to the alveoli. जब जितनी देर में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोली में हो रहा है, एल्वियोलर सरफेस पे हो रहा है। तो इस सरफेस पे जब तक ये एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, दैट टाइम यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में एक्स्ट्रा एयर हमारे लंग्स में हमेशा रहते हैं। और ये जो एल्वियोलर सैक है, इसको अगर इट इज़ सेड दैट अगर हम इसको पूरा स्प्रेड आउट कर दें तो इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट हमारा होता है 80 मीटर स्क्वायर। नाउ कैन यू इमेजिन 80 मीटर स्क्वायर मीन्स यू कैन से 10 और 8 मीटर का, 10 मीटर और 8 मीटर का अगर एक रेक्टेंगल बनाओ तो कितना ज़्यादा एरिया, उतना ज़्यादा एरिया अगर, क्योंकि बहुत सारे हैं, इट कंटेन्स न्यूमरस नंबर ऑफ एल्वियोली, तो अगर हर एक एल्वियोली को हम स्प्रेड आउट करें तो टोटल एरिया इतना होता है। ऑब्वियसली क्योंकि देखो वी आर नॉट यूनिसेलुलर एनिमल, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी साइज जो हमारी बहुत ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह। इट इज़ सेड दैट अगर हेड से लेके टो तक अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचना है डिफ्यूजन के थ्रू, देन इट विल टेक 3 years. Just imagine. And because of this large area of alveoli and because of the hemoglobin present in the respiratory pigment, this hemoglobin present in the blood, this process is so fast. Each and every second, each and every moment we are getting oxygen to each cell. So this is the whole human respiratory system. Once again, in very short I will explain this. Air is taken inside our body through the nostril, then nasal passage, from nasal passage to pharynx, larynx, trachea, rings of cartilage, and then from rings of cartilage two branches of tube are there, bronchi, which is known as bronchi. This bronchi further divides into smaller and smaller branches, which is known as bronchioles. At the end of each bronchioles there are balloon like structures which are known as alveoli.
this alveoli have very large surface area, and through this surface exchange of gases takes place. That means from this oxygen goes inside the blood vessels, and carbon dioxide which comes here from each and every cell of the body comes to alveoli, and then it goes out. This carbon dioxide with the air, it goes out through the nostril. So that's all for today. Thank you.